Hello everyone, we are talking about elasticity of demand. So, in elasticity of demand, we have to read following concepts or topic. First topic is concept of elasticity of demand. After that, we will talk about types of elasticity of demand. There are three types of elasticity of demand: price elasticity of demand, cross elasticity of demand, income elasticity of demand. After that, we are going to talk about degrees of price elasticity of demand. So there are 5 types of degrees of elasticity of demand. One is perfectly elastic demand, that is ED equal to infinite. Second one is perfectly inelastic demand, that means symbolically you can represent it AD is equal to 0. Unitary elastic demand, this means ED equal to 1. Third is fourth is highly elastic demand, that means ED is greater than 1. And fifth one is less elastic demand or inelastic demand, that is ED is less than unity. After that, we will talk about methods of measuring price elasticity of demand. What are the various methods by which we can measure price elasticity of demand? We will study 3 methods. One is percentage method, second is point method, and third is total expenditure method. In the previous class, we have talked about concept of elasticity, types of elasticity, price elasticity of demand, cross elasticity of demand, income elasticity of demand. We have also seen the various formula for these types of elasticity of demand. So today we are going to talk about degrees of price elasticity of demand. So let's get started. We are today going to talk about degrees of price elasticity of demand. So elasticity of demand is a numerical value. Elasticity of demand is a numerical value. Elasticity of demand is price elasticity of demand is represented by ED and it is a numerical value. And it ranges from ED ranges from 0 to infinity. So the lowest value of price elasticity of demand may be 0 and highest value of price elasticity of demand may be equal to infinity. So first of all, we are going to talk about first is your perfectly
perfectly elastic demand. Symbolically, ED equal to infinite. So, what is the meaning of this? Perfectly elastic demand means when price elasticity of demand is infinity, then an infinitely small change in price lead to infinitely large change in amount demanded, or when there is an infinite increase in demand, when there is an infinitely small decrease in price, demand increases infinitely. मतलब अगर प्राइस में आपका बहुत ही छोटा चेंज होता है, प्राइस आपकी डिक्रीज करती है, प्राइस आपकी डिक्रीज कर रही है, वो भी इनफाइनाइटली स्मॉल, काफी छोटी प्राइस में डिक्रीज होता है, लेकिन इसके रिजल्टेड जो क्वांटिटी डिमांडेड है, हमारी डिमांड है क्वांटिटी डिमांडेड है, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाए, इनफाइनाइटली इंक्रीज कर जाए, तो जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी उसे बोलेंगे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मतलब प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ, बहुत कम चेंज हुआ, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, इतना कम चेंज होने के बावजूद जो डिमांड है आपकी वो इनफाइनाइटली इंक्रीज हो गई। और अगर आपकी प्राइस में इनफाइनाइटली स्मॉल इंक्रीज हो गया, ये जो प्राइस बढ़ी ये बहुत छोटी सी है, इनफाइनाइटली स्मॉल इंक्रीज हुआ प्राइस में, लेकिन इसके जवाब में जो क्वांटिटी डिमांडेड है जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है और इवन जीरो हो जाती है, डिमांड घटकर आपकी जीरो हो जाती है। तो इस टाइप के केस में जो डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी उसे हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। हम यहाँ पे y एक्सिस पे ये हमारा इट इज आवर y एक्सिस एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग प्राइस ऑन y एक्सिस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑन x एक्सिस। तो इस केस में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का केस कब होगा? जब आपका डिमांड कर्व हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस हो, कुछ इस तरीके का डिमांड कर्व हो, यानी प्राइस में थोड़ा सा चेंज हो गया आपका, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उस थोड़े से चेंज होने के कारण आपकी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जा रही है। अगर हमारी थोड़ी सी डिमांड कम हो गई, प्राइस कम हो गई, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। वो बढ़ के मतलब ये प्राइस था हमारा इनिशियल क्वांटिटी था, अगर प्राइस इससे थोड़ी सी कम हो गई जरा से, तो जो डिमांड है वो इनफाइनाइटली बढ़ जा रही है। और अगर प्राइस इससे थोड़ा सा ऊपर गया
तो जो डिमांड है वो डिक्रीज होके 0 हो जा रहा है। तो इसका ये डायग्राम होता है। हमें ये याद करना है, हमें ये जानना है कि जब ऐसा डिमांड कर्व होगा तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस कर्व की देखते ही हम बता देंगे कि इनफाइनाइट है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप पे। दूसरा टाइप है आपका परफेक्टली inelastic demand, means ED equal to 0। इसका मतलब क्या है? तो इसमें होता क्या है, when there is no change in demand with change in price, the demand for such a commodity is said to be perfectly elastic। One more time, when there is no change in demand with change in price, then demand for such a commodity is said to be perfectly elastic। मतलब अगर आपकी प्राइस में इंक्रीज हो और क्वांटिटी डिमांडेड, जो क्वांटिटी डिमांड है या डिमांड है उसमें कोई चेंज ना हो, नो चेंज, कोई चेंज ना हो, प्राइस आपकी बढ़ी लेकिन डिमांड में डिक्रीज नहीं हुआ। जनरली क्या होता है, जब प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी डिक्रीज होती है, लेकिन जब परफेक्टली इनएलास्टिक डिमांड होगा इस केस में आपकी प्राइस बढ़ने पर भी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि बहुत ही इसेंशियल कमोडिटी हो, नमक, जैसे साल्ट का आप कंजम्पशन कर रहे हो, साल्ट की प्राइस बढ़ जाएगी तो भी हम सेम क्वांटिटी का डिमांड करते रहेंगे। These are hypothetical situations, but we are trying to relate with some realistic examples। अब इसके एक अपोजिट सिचुएशन भी हो सकती है कि प्राइस डिक्रीज करे, प्राइस डिक्रीज करने के बावजूद जो क्वांटिटी डिमांडेड है जो क्वांटिटी डिमांडेड है इसमें कोई चेंज ना आए, नो चेंज, प्राइस घटने पे भी कोई चेंज नहीं हो रहा है और प्राइस में इंक्रीज होने पर भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इस केस में जो डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो क्या होगी, 0 होगी। इसको हम बोलेंगे परफेक्टली इनएलास्टिक डिमांड। अब हम इसके डायग्राम की बात करते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए हम वाई एक्सिस पे एज यूजुअल प्राइस और एक्स एक्सिस पे क्या दिखाएंगे, क्वांटिटी डिमांडेड। इस टाइप का कि इस केस में जो आपकी डिमांड कर्व होगी वो वर्टिकल डिमांड कर्व होगी, डी, ये आपकी डिमांड कर्व होगी। यहां पे हम ये एज्यूम करते हैं कि जब प्राइस आपकी पी थी, जब प्राइस आपकी ओपी थी तो भी जो डिमांड थी वो ओडी थी, प्राइस बढ़ के आपकी OP1 हो गई, प्राइस जो हुई बढ़ गई, बढ़ के OP1 हो गई। इस OP1 प्राइस पर भी डिमांड आपकी सेम है, ये OD, ठीक है। प्राइस आपकी बढ़ी, बढ़ के OP1 हुई, फिर भी डिमांड आपकी OD ही है। इसके विपरीत, इसके अपोजिट, प्राइस डिक्रीज होकर, प्राइस गिरकर OP0 हो गई, मतलब OP1 प्राइस थी कम होकर
ओपी हो गई तो भी डिमांड हमारी ओडी ही है। तो यहाँ पे जब आपको कहे कि इस केस में जब डिमांड का वर्टिकल हो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, जीरो होगी, यानी कि इन इलास्टिक डिमांड। तो कभी कभी क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में, डायग्राम बनाया रहेगा और पूछेगा कि इस डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो जब ये वर्टिकल होगा तो आपको बता देना है जीरो, और ये जब हॉरिजेंटल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इलास्टिसिटी जो है वो इनफाइनाइट है। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड टाइप ऑफ डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो है आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में होता है when percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price, then demand for such a commodity is said to be unitary elastic. One more time, when percentage change in quantity demanded, percentage change in quantity demanded आपका क्या होता है, जैसे percentage change in percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price. परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जब प्राइस में परसेंटेज चेंज और क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज इक्वल होगा तो उस समय जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो 1 होगी। इसे हम कैपिटल ईडी दिखा रहे हैं, आप स्मॉल ईडी भी लिख सकते हैं, यू आर फ्री टू राइट। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की फॉर्मूला हमने पहले ही बताया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये हमने बताया हुआ था। तो जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो 1 होगी। अब इसका हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। ये आपका हो गया डिमांड कर्व इस टाइप का। शुरू में प्राइस क्या थी आपकी, ओपी थी, क्वांटिटी ओक्यू थी, प्राइस घटा, ओपी 0 हुआ, क्वांटिटी आपकी प्राइस घटी, ओपी से ओपी 0 हुआ, तो प्राइस घटने पे क्या होता है, डिमांड इंक्रीज कर जाती है, ओक्यू से OQ1 हो गया। यानी कि यहाँ पे जो चेंज हुआ डेल्टा पी, ये चेंज और ये चेंज इक्वल है, इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, तो इस केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 है। तो जब आपको इस टाइप का डायग्राम मिले तो आप जान जाइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होगी। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ टाइप ऑफ डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज हाईली इलास्टिक डिमांड, मीन्स ED इक्वल टू ग्रेटर देन 1। यहां पे क्या होगा, when percentage change in quantity demanded is more than percentage change in price, then demand for such a commodity is said to be highly elastic demand, means
percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price, तब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है आपकी इट इज ग्रेटर देन 1 और इसी को हम बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। तो इसका अब हम लोग डायग्राम देखते हैं। इसका डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से है। ये आपकी डीडी कर्व हो गई। प्राइस जब आपकी ओपी थी, प्राइस जब ओपी थी तो जो क्वांटिटी डिमांडेड था वो क्या था, ओक्यू था। प्राइस आपकी डिक्रीज की, थोड़ी सी डिक्रीज की, लेकिन इस प्राइस के थोड़ा सा डिक्रीज करने पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया। प्राइस गिर के आपकी क्या हुई, P0 हो गई, तो डिमांड आपकी इंक्रीज कर गई OQ1 तक। तो इस केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इसी को बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। अब हम बात करेंगे फिफ्थ केस, इन इलास्टिक डिमांड या लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड यानी ED इक्वल टू लेस देन 1। तो यहां पे क्या है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस, जब क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज आपके प्राइस में परसेंटेज चेंज से कम हो तो क्या होगा, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इट विल बी लेस देन 1। इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम ये हो गया आपका, प्राइस आपकी हमेशा जब भी डायग्राम बनाए तो वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको मेंशन करें। मैंने कहीं कहीं छोड़ दिया है, आप उसको मेंशन कर दीजिएगा। शुरू में प्राइस हमारी ओपी थी, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी ओक्यू थी। प्राइस हमारी डिक्रीज की OP1, यानी प्राइस काफी ज्यादा डिक्रीज की OP0। क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस आपकी इतना डिक्रीज की, OP0 हो गई, लेकिन डिमांड आपकी केवल इतनी ही इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है इट इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो इस केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी। तो
आप ये जो मैंने सभी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको पढ़ाई, आप फार्मूले पे फिट करेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आप इसी फार्मूले पे पुट करेंगे वैल्यूज तो आपको सभी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमें कुछ केसेस मिल के आए कि जो मिनिमम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू है वो है 0 और उसको हम बोलते हैं इनइलास्टिक डिमांड, और जो मैक्सिमम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू है वो है आपका इनफाइनाइट। तो अभी मैं सभी केसेस को एक सिंगल डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा। जो हमने पांचों टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात की, अब हम उसे एक सिंगल डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला हमारा था ये हमारा एक्स एक्सिस है और हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड। पहला हमारा डिमांड कर्व था परफेक्टली हाईली इलास्टिक डिमांड। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि परफेक्टली हाईली इलास्टिक डिमांड जब होगा तब आपका डिमांड कर्व कैसा होगा, वो था हमारा हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। तो हम इसे लिख देते हैं ED इक्वल टू इनफाइनाइट। इसमें हो क्या रहा था, प्राइस में बहुत थोड़ा सा चेंज हो रहा था, मतलब 0 के बराबर चेंज हो रहा था। ये जो फार्मूला है आपका, ये डिनोमिनेटर में चेंज क्या हो रहा था, 0 के बराबर। तो जब आप 0 से किसी संख्या में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। तो ये आपका था ये केस। जब ऐसा डिमांड कर्व होगा तो इसकी इलास्टिसिटी 0 होगी। फिर हमने बात की परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इस केस में क्या था आपका डिमांड कर्व, इस केस में आपका प्राइस में कुछ भी चेंज हो रहा है आपका, लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जो न्यूमरेटर की वैल्यू है फार्मूले में वो क्या हो जा रही थी, 0 हो जा रही थी, कोई चेंज नहीं हो रहा था। जब 0 में किसी संख्या किसी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो आंसर 0 आता है। तो ED इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे सिंपली एक डायग्राम में सभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये क्या था, इनफाइनाइट, ऐसा डिमांड कर्व है 0। अब आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगा तो आप इस तरीके से बनाइए, ED इक्वल टू 1। फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी इस केस में यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के केस में जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, सॉरी फार्मूले में, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब ये वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो डिवाइड हो जाएगा, आंसर आपका 1 आ जाएगा। अब बात आती है हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड क्या होगी, अगर आपकी डिमांड कर्व एक्स एक्सिस ये जो कर्व है इसके करीब आ रहा है, या सिंपली यहां पे आप बना लीजिए ED इक्वल टू ED इज ग्रेटर देन 1, हाईली इलास्टिक डिमांड। इस केस में क्या होता है,
जो फार्मूला हमारा ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होगी। जब एक बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर हमेशा 1 से बड़ा आएगा, 1 से ग्रेटर आएगा, तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगा। अब हम लास्ट केस जिसमें हमने बात की थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, तो हम क्या करेंगे, इधर से डायग्राम बनाएंगे। ED इज लेस देन 1। यहाँ पे क्या होता है, जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है, यानी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो बड़ी हो जाती है और न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी रहती है, यानी कि जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा परसेंटेज वो छोटा होगा और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ये बड़ा होगा। तो जब हम एक छोटी वैल्यू में एक बड़े वैल्यू से डिवाइड करेंगे, एक छोटे नंबर में एक स्मॉल नंबर में एक बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा। तो ये थी हमारी 5 तरीके की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम सिंपली और भी एक ही डायग्राम में बना सकते हैं समझने के लिए। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे प्राइस। एक ही पॉइंट से हम निकालते हैं डिमांड कर्व को। ये क्या हो गया आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट। ये क्या हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वर्टिकल है मतलब 0, ठीक बीच से जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1, इस 1 और इधर जाएगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, इधर में आएगा बीच से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। तो आप देखिए जैसे जैसे कोई डिमांड कर्व फ्लैट होता जा रहा है उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती जा रही है। जैसे वर्टिकल था तो 0, फिर थोड़ा फ्लैट हुआ तो लेस देन 1, और फ्लैट हुआ तो इक्वल टू 1, और ज्यादा फ्लैट हो गया तो ग्रेटर देन 1। हाईली परफेक्टली फ्लैट हो गया तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी वो इनफाइनाइट हो गई। तो ये हो गया, इसके बाद हम अगले लेक्चर में देखते हैं।